and also we try to define the structure of the intelligent agent, and we have seen that agent can be defined as agent is equal to architecture plus agent program, and this agent program is used to implement the agent function, and you have seen that agent function is a function from the set of this perceived sequence to those actions defined. Okay, I hope all these topics that we discussed in the last lecture are clear to you, right? So I come to today's topic, and today's topic is a very important one, that is PEAS, Peace Representation in Artificial Intelligence. So आज का जो टॉपिक है वो क्या है? PEAS. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this topic is going to be very important and asked in many different competitive examinations. So please concentrate. Okay. So what is peace? First of all, this is a type of model on which an AI agent, that is artificial intelligence agent, works upon. So we already know that AI agent, that rational agent, how we can group them with respect to the properties, that is PEAS. And this P stands for performance measure, E stands for environment, A stands for actuators, and S stands for sensors. And in this case, while we go for measuring these things, okay, our main object is to find out that the success ratio of an agent's behavior. ठीक है, जो ये PEAS है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीस रिप्रेजेंटेशन, इसके जरिए हम क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव? आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट कि जो एजेंट का बिहेवियर है, एजेंट्स बिहेवियर, वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर दैट हाउ द एजेंट्स आर परफॉर्मिंग विथ रेस्पेक्ट टू द परसेप्ट सीक्वेंस दैट इट हैज एक्युमुलेटेड. ठीक है, ये कितना सक्सेस हो पा रहा है, एक एजेंट अपना परफॉर्मेंस में कितना सक्सेस हो पा रहे हैं, इसी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? PEAS. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. P stands for performance measure, E stands for environment, A stands for actuators, and S stands for sensors. अब P का बारे में तो आपको समझ में आ गया कि how we are going to calculate the performance. Okay, so performance कैसा हो रहा है? Okay, whether is an effective or not effective. अब E क्या है? We have already discussed what is environment with respect to agent. Okay, environment is the one from which the agent actually accumulating those percepts, right? Environment से क्या कर रहा है agent? वो input ले रहा है, right? Then actuators. Actuators means how it is actually going to perform. ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा और किससे करेगा, वो है actuators. So with the help of actuators, actually agent is going to perform something, right? Then sensors, to collect those input, to gather those in percept means sequence, we need sensors. Sensor के जरिए हम क्या करते हैं? Environment से input लेते हैं. तो हर एक टर्म I hope now clear to you. P का मतलब समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मेजर करना. E का मतलब समझ में आ गया, एनवायरमेंट. ठीक है, A का मतलब समझ में आ गया, एक्चुएटर्स. एंड S का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया क्या है? सेंसर्स. अब जब भी हम कोई एजेंट की बात करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, जो हमारे प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट पे जो एजेंट होगा, वो सारे प्रॉपर्टीज को हम इस PEAS के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे. ओके, ठीक है. Yes, sir. ये सब समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू. सो आप देखो, मैं पहला जो एजेंट, आर्टिफिशियल एजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कंसीडर कर रहा हूं, वो है क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार. अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, सुना होगा, और मैंने भी अपना टॉक जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माय टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई शोड यू सम एग्जांपल्स ऑफ recent development in the field of AI, like we have self-driving cars.
ठीक है, ये सब दिखाया था मैंने आप लोगों को वेमो का जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, कैसे वो कंप्यूटर विजन टेक्निक के जरिए अपने आप ड्राइवर के बिना ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, वी डोंट नीड ड्राइवर देयर, you just need to put your destination address, means you just need to type your destination, you just need to click the destination, then you can means travel with a driverless car without any problem or without facing some unfortunate accident। ठीक है, आपको उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको जाना है, आपको डेस्टिनेशन बस क्लिक करना होगा, जहाँ पे ड्राइवर भी नहीं। ये सारे चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसेंट डेवलपमेंट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं जो ये PEAS है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के रेस्पेक्ट में कैसे ग्रुप आउट करेंगे। ओके, हाउ वी गो फॉर ग्रुप आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेल्फ ड्राइविंग कार दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ठीक है, तो आप जब सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठोगे और आपका दिमाग में ये रहेगा, क्या सबसे पहला चीज क्या रहेगा, आप जब एक ऐसी गाड़ी में आप बैठ गए हो जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। हाँ, आपको जाना है सपोज दिल्ली, ठीक है, आप नोएडा में, न्यू दिल्ली जाना है, आपने नोएडा में जाके आप बैठ गए हो उस सेल्फ ड्राइविंग कार पे, तो सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आएगा वो क्या होगा, सेफ्टी। आप सोचोगे कि क्या मैं सेफली न्यू दिल्ली जंक्शन तक पहुंच जाएंगे इस गाड़ी से और नहीं, राइट? Whether I'll reach that New Delhi junction with this self-driving car safely or not। ठीक है, जो दिमाग में इसे आ रहा है सेफली, वो एक प्रकार का परफॉर्मेंस मेजर है, राइट? सो परफॉर्मेंस मेजर को हम अगर कैलकुलेट करेंगे इस केस में, सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में, तो क्या क्या होगा, सेफ्टी दिमाग में आएगा। और नेक्स्ट चीज जो दिमाग में आएगा, क्या आपकी गाड़ी है, सपोज आपकी ट्रेन है 11 बजे, यू हैव ट्रेन एट 11 AM। नाउ आप नोएडा से बैठ गए हो, सपोज आई कंसीडर द टाइम 10 AM। तो विदिन दैट टाइम वेदर दैट सेल्फ ड्राइविंग कार विल बी एबल टू ब्रिंग यू टू दैट डेस्टिनेशन ऑफ न्यू दिल्ली बाय द टाइम लिमिट, क्या उस टाइम में पहुंचा पाएंगे या नहीं, राइट? क्या टाइम एफिशिएंटली लेगा, मतलब कम टाइम लेगा या नहीं। ठीक है, ये एक चीज भी आ जाएगा इसका परफॉर्मेंस मेजर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेफ्टी आपने देख लिया, टाइम देख लिया, और लीगल ड्राइव है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं ना ये जाके कहीं पे भी गाड़ी उठा के लेके जा रही है गाड़ी। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं इसको, फुटपाथ में भी, तो ये हमारे सलमान भाई की तरह उठा के किसी को भी, मतलब समझ ही रहे हो आप, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, राइट और रॉन्ग, समझ में आ रहा है ना आपको? तो दिस थिंग्स, whether it is driving legally or not, means whether it is following, the car is following the traffic rules exactly or not। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, परफॉर्मेंस मेजर है। देन कंफर्ट, whether you are comfort फीलिंग कंफर्ट और नॉट, बहुत ज्यादा जार्किंग मतलब हो तो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, आर यू फीलिंग कंफर्ट और नॉट। सो दिस थिंग्स, फर्स्ट सेफ्टी, सेकेंड टाइम, थर्ड लीगल ड्राइव, फोर्थ comfort, all this will belong under performance measure, that is P। क्या यहाँ तक के आप लोग सभी को समझ में आ गया? Whether have you got these points up to now? Yes sir। Yes? Yes sir। Yes sir। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ई पे आता हूँ। ठीक है, अब ई में क्या है, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम। जब एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी चल रही है, तो आपके एनवायरनमेंट में क्या होगा, व्हेन अ कार इज ड्राइविंग, इट विल ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट विल बी क्या, विल बी व्हाट, योर नियर बाय कार्स or those pedestrian or those bikers or those different other cars, okay, moving beside you, okay। so ये सारे चीज क्या होगा, हमारे लिए एनवायरनमेंट होगा, दैट इज रोड्स, अदर कार्स, पेडेस्ट्रियंस, रोड साइंस, ये सारे चीज मिलके एनवायरनमेंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ई। देन एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स मैंने बता दिया था कि आप उसका, आपका एजेंट, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट है, जब इसने परसेप्ट ले लिया, जब इसने एनवायरनमेंट से इनपुट ले लिया, अकॉर्डिंगली वो कैसे उस इनपुट के अगेंस्ट एक काम करेंगे,
how the artificial intelligence agent will act upon those percepts that you have accumulated from that environment, that is through actuators. अब इस केस में देखो, गाड़ी चला रहे हो, आप खुद भी इमेजिन करो, जब गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, स्टीयरिंग, ठीक है, इधर से उधर आपको मूव करना है, इधर से इधर टर्न लेना है, तो यू विल नीड स्टीयरिंग। इसी तरह आपके सामने कोई और गाड़ी आ गई तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक पुश करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे एक्चुएटर्स क्या क्या होगा, स्टीयरिंग आ गया, एक्सीलरेटर्स, ऑफ कोर्स टू increase or decrease speed we need accelerator, right? Similarly we need brake, we need signal, we need horn. So all these things will come under actuators. Now you tell me, this P performance, E environment, A actuators, up to now whether all these points are clear कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारे चीज? यस सर। तो मुझे बताओ, ये जो एस है, सेंसर्स हैं, तो इसमें क्या आएगा? What are those sensors that will come under here in this case? सर सेंसर्स में सर जैसे कोई गाड़ी मतलब पीछे चल रहा है और उसको मतलब रोड क्लियर चाहिए, तो जो सर हॉर्न मारेगा तो सेंसर के थ्रू इनपुट आएगा कि वो पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, तो हम लोग सर रास्ता देंगे। तो वेरी गुड एग्जाम्पल। तो सारे चीज के लिए, जैसे राजेश ने कहा कि पीछे जा रहे कोई हॉर्न बजा रहे हैं, तो उस साउंड को कलेक्ट करना है, साउंड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेंसर होना चाहिए। इसी तरह सपोज गाड़ी ब्रेक किया जा रहा है, तो ब्रेक जब कर रहे हो, आजकल एक कैमरा लगी हुई होती है, सेंसर लगी हुई होती है, ठीक है, तो उसके जरिए आपको हाँ वो पिक्चर आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, इट नीड्स सेंसर एवरीवेयर टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ये सेंसर्स हैं जिसके जरिए ये क्या कर रहे हैं, वो परसेप्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो परसेप्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ऑल दीज थिंग्स आर सेंसर्स with the help of which these actuators are working, ठीक है। तो these PEANS regarding the artificial intelligence self-driving car, I hope this is clear to you now. यस सर। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल आपको समझ में आ गया है, तो मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ। तो इसको फिर से एक बार दिखाई देता हूँ कि अगर इसको हम लिखेंगे, एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे। लेट्स सपोज ए सेल्फ ड्राइविंग कार एंड पीस रिप्रेजेंटेशन विल बी P परफॉर्मेंस, सेफ्टी, टाइम, लीगल ड्राइव, कंफर्ट, एनवायरनमेंट, रोड्स, अदर व्हीकल्स, रोड साइंस, पेडेस्ट्रियन, एक्चुएटर्स, steering, accelerator, brake, signal, horn, then sensors, camera, GPS, speedometer, odometer, accelerometer, sonar. So all these things, कैमरा के जरिए, कैमरा तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जीपीएस आप लोगों को पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, देन स्पीडोमीटर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी आर मेजरिंग दैट स्पीड, देन ओडोमीटर, एक्सेलरेटोमीटर, सोनार, ऑल दीज थिंग्स। तो आप लोग क्या करना, हर एक के बारे में, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, सोनार, तो इस सब के बारे में एक बार देख लेना, ये हर एक क्या काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट छोड़ देना कि ओडोमीटर क्या काम करता है, ठीक है, ओडोमीटर क्या काम करता है, सोनार क्या काम करेगा with respect to self-driving car, right? Yes sir. Now coming to the next artificial intelligence based agent, that is medical diagnosis system. I already given an example of medical diagnosis system, an expert system, जिसके जरिए हम वो सारे चीज कर सकते हैं जो एक डॉक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस मेजर की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस मेजर इन दिस केस, ऑफ कोर्स पेशेंट हेल्थ, कॉस्ट, रिपुटेशन विल कम प्लेस, राइट। कि आपने ये जो मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम यूज किया है, इससे जरिए पेशेंट्स का हेल्थ, क्योंकि जो मेडिसिन रिफर किया गया है विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपर्ट सिस्टम, वेदर दे आर एबल टू एक्चुअली ट्रीट दैट पेशेंट और नॉट, तो इससे पेशेंट का हेल्थ के बारे में पता चलेगा। और कॉस्ट, हमारा मेन एम ही ये है कि डॉक्टर से कम पैसे में और कम समय में ये चीज करना है,
और एक्यूरेटली करना है, तो ये कॉस्ट क्या मीट हो पा रहा है, whether this cost is being meted or not, right? Then with the help of reputation, okay, reputation means whether that expert system that we have designed that is able to track correctly the disease or not, okay. So you do one thing, you just take a screenshot of this, so I think the performance measure, this will be clear to you. So in this case, if we talk about the environment क्या होगा? Obviously, when the patients comes, the patients will be one part of the environment. Then medical staff will be there who will consider, who will do the imaging part. मतलब क्या करेंगे? आपका एक्सरे लिया सपोज, आपका एमआरआई किया गया है, ठीक है? तो ये सारे चीज के लिए सपोज आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा था, तो वो इंश्योरेंस आके देखेंगे कि हाँ सही ढंग से हो रहा है ये सब चीज, कि ताकि हम अपना जो पैसा है वो लगाएंगे और नहीं देंगे या नहीं, ठीक है? So sometimes if this is a case of accident, then these things courts will be also considered. So environment will consider these facts: patients, medical staff, insurers, and courts, right? Okay. So I hope this environment part is clear to you. मुझे बताओ कि environment part समझ में आ गया सभी को? Yes sir. आ गया? अब देखो एक्चुएटर्स। Yes sir. एक्चुएटर्स क्या होगा इसमें? आपका क्या होगा कि ये जो भी चीज हो रहा है अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इसका स्क्रीन, ठीक है? कहाँ पे एक्चुअली वो डिजीज डायग्नोज किया गया, डिटेक्ट किया गया है और कैसे डायग्नोज किया गया है, फॉर दिस थिंग्स वी नीड ए स्क्रीन डिस्प्ले, राइट? और ईमेल, सपोज you have been diagnosed with some disease, okay, some disease, that information should be sent to you. So for that we will need email, okay, automatically email generate होके आपके पास आ जाएगी वो रिपोर्ट. So this will come under actuators part. अब sensors की बात आएगी तो अभी because this is a computer system, so sensors, for the keyboards we are getting the information, for the mouse we are getting the information, right? So these sensors will consider these things, okay. Okay, is this PEAS with respect to medical diagnosis system, क्या सारे चीज आप लोगों को समझ में आ गया? Whether all points are clear to you or not? बताओ जल्दी रेस्पॉन्स दो. Am I audible or not? Whether are you getting these points or not? Please. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. देखो ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स में जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वही चीज आएगा. नो, दैट्स नॉट द केस. समटाइम्स एडिशनल पॉइंट्स आपको लगा कि ये एनवायरमेंट पे ये चीज आ रहा है कि सपोज वार्ड बॉय, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो. एक्चुएटर्स में आपने सपोज कुछ और चीज यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो सपोज प्रिंटर के जरिए आप जो है रिपोर्ट प्रिंट करा रहे हो, तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हो. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैं Yes, ये sir. बोल रहा हूँ कि जो स्क्रीन sir. डिस्प्ले में लिखा है, ईमेल में लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो आएगा, इसमें और भी चीज आ जाएगा. बट आपको क्या समझना है कि ये जो परफॉर्मेंस मेजर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, एक्चुएटर्स क्या है, सेंसर्स क्या, ये सारे चीज को आपको रिकॉग्नाइज करके उसी तरह आपको पॉइंट्स बनाना है. राइट? गॉट इट? ठीक है? हाँ, प्लीज. Sorry, email to equator কেনেকৈ আহিলে মই বুজি নাপালো. Because see, actuators are what? Which are performing something, right? Yes sir. जो perform करते हैं कुछ किबा जी एक्शन लय. Of course যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা বেমাৰ ডিটেক্ট হ'ল, এইটো যিটো মেডিকেল ডায়াগনষ্টিক চিষ্টেম যিটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বেছড, কি হ'ব? সেই বেমাৰৰ ৰিপৰ্টটো তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব. Are you getting my point? So Yes, sir. if this is online, if this is digital one, obviously that report will be mailed to you. और हे मेल तो क्या द्वारा करছে? Of course you are using some email, say Gmail or suppose Yahoo, whatever the mail system you are using. ये mail to generate কৰিব লাগিব.
and these Yes, things actually being generated or doing something, so that's why it is coming under actuators. Now you Yes. tell me, are you getting my point? Yes, sir, I got it now. ओके, तो मैं आप और एक नया एग्जांपल पे जाता हूँ, वो है वैक्यूम क्लीनर. आर यू गाइस फेमिलियर विद द टर्म वैक्यूम क्लीनर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. यूरेका फोर्स आप लोगों ने सुना होगा, यूरेका फोर्स का जो वैक्यूम क्लीनर आया था पहले, उसके अभी तो बहुत सारे हैं. तो क्या है, झाड़ू लगाना, ठीक है, नॉर्मल केस में. तो झाड़ू कब लगाते हैं आप लोग? जब वहाँ पे कुछ क्या होगा, कुछ कचरा है, तो इसलिए आप रूम साफ कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस थिंग वी कैन डू थ्रू सम AI बेस्ड एजेंट, दैट इज वैक्यूम क्लीनर. तो हम क्या करते हैं वैक्यूम क्लीनर में? अगर आपके पास वो नॉलेज होगा वैक्यूम क्लीनर कैसा दिखता है, सबके पास तो शायद आइडिया होगा वैक्यूम क्लीनर कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें. फ्रैंकली बताओ, पता है या नहीं? पता है. ठीक है, तो उसमें एक ऐसा नली रहता है, ठीक है, उसके सामने क्या होगा, आपके सामने कुछ डार्टी, कुछ कचरा होगा, तो इसको चक करेगा ये. ठीक है, चक करेगा मतलब अंदर ले लेगा, उसमें एक थैला जैसा टाइप का रहेगा, एक थैली रहेगा, उसमें जाके ये सारे कचरा घुस जाएगा. ठीक है, ऑल दिस दोस डार्टी थिंग्स विल बी चक्ड एंड दोस केप्ट इनसाइड दैट बैग, इन दैट वैक्यूम क्लीनर. So if we look at through a function, then the function can be constructed like that. Function reflects vacuum agent location status. If status is equal to dirty, then return chuck. Else if location is equal to A, then return right. If location is equal to B, else if location is equal to B, then return left. अब मैं इसको सरल शब्द में बोलूं तो क्या हो रहा है, आप कि वैक्यूम क्लीनर जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है, यू आर डूइंग नथिंग बिकॉज द मशीन दैट वैक्यूम क्लीनर इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, राइट. तो ये सारे चीज प्रोग्रामिंग थ्रू हो रहा है. तो ये क्या होगा, सामने अगर डार्टी चीज दिखाई देंगे तो वो चेक करेगा, ये सात फंक्शन को कॉल कर रहा है. आ रहा है समझ में? अगर सामने डार्टी चीज नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये या तो राइट डायरेक्शन पे मूव करेगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करेगा. ठीक है, अभी सपोज लोकेशन ए में है, तो ये क्या करेगा, राइट डायरेक्शन पे गया और वहां पे जाके वही चीज करेगा कि स्टेटस डार्टी है तो चेक करेगा, नहीं तो फिर से मूव करेगा. या लोकेशन बी में होगा तो ये लेफ्ट मूव करेगा. तो इसी तरह एक जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है, क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट को पार्सेप करके एक्चुएटर्स के थ्रू कुछ काम करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So if we look at the different those percepts, those actuators, तो इसका भी हम एक्सिस बना सकते हैं, PEAS. My point is clear? तो यहाँ पर भी आप बना सकते हो. अब सिंपल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, एनवायरमेंट फ्लोर्स ऑफ योर अपार्टमेंट, सेंसर्स क्या लगा रहे हो, दैट सेंसर्स डिटेक्ट्स व्हेन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द रोबोट इज डर्टी. बम्प सेंसर सपोज डिटेक्ट्स व्हेन it has bumped into something. Power sensor suppose measures amount of power in the battery. Obviously ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पावर बाकी है, कितना और देर तक ये काम करेगा. बैग सेंसर, जैसे मैंने बोला कि इस बैग फुल तो नहीं हो गया है, जो कचरा भर रहा है वहाँ पे भरते ही जा रहे हो और वो बैग सपोज फट गया फुल हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये सारे सेंसर्स की जरूरत पड़ेगी. इफेक्टर्स क्या है, मोटोराइज व्हील्स, ठीक है, चक ऑफ मोटर, देन प्लग इनटू वॉल, एम्प्टी डार्क बैग, ये सारे चीज. पार्सेप्ट क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक ही चीज पार्सेप्ट कर रहे हो कि आप फ्लोर डार्टी है या नहीं. ठीक है, एक्शंस क्या कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, कितना आगे बढ़ा रहे हो, सपोज 0.5 फीट पर सेकेंड, लाइक दैट. ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल आएगा, इसका भी हम PEAS बनाएंगे. तो ओवरऑल मैं इसको, ये पहले फर्स्ट जो है मेडिकल डायग्नोसिस देख लिया. सबसे पहले तो हमने देखा था सेल्फ ड्राइविंग कार, उसके बाद हमने देखा मेडिकल डायग्नोसिस, उसके बाद देखा हमने वैक्यूम क्लीनर. ये वाला छोड़ दो, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा. तो देखो मैंने ये टेबल बनाया, आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल, एजेंट, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स. सो मेडिकल डायग्नोसिस हमने डिसाइड कर लिया. मैंने जैसे बोला था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि यही वाला सेंसर रहेगा, आपके नॉलेज में कोई और सेंसर होगा तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट. सिमिलरली वैक्यूम क्लीनर जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, उसके केस में PEAS बनाएंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस मेजर,
क्या सही ढंग से क्लीन कर पा रहे हैं कि नहीं, whether accurately, whether I can say that cleanness is reached up to 99% or not, ठीक है। एफिशिएंसी कैसा है, बैटरी लाइफ क्या है, सिक्योरिटी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ शॉर्ट हो रहा है और लाइक दैट। Then environment, your room, table, wood floor, carpet, various some other obstacles. Suppose vacuum cleaner जा रहा है, उसके सामने एक क्या हो गया, एक खंबा आ गया सपोज, ओके, सो दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। এটা খুটা আহি গ'ল সন্মুখত, কি হ'ব তোমাৰ ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো যায় গৈ পেলাই তাত কি হ'ব, কলাপছ হ'ব। সো এনেকুৱা হ'ব নালাগিব। সো অল দিস থিংস উইল কাম আন্ডার एनवायरमेंट। देन एक्चुएटर्स में क्या हो रहा है, व्हील्स, ब्रशेस, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, दिस विल कम अंडर एक्चुएटर्स। एंड सेंसर्स में मीन्स कैमरा, डर्ट डिटेक्शन सेंसर, क्लिप सेंसर, बम्प सेंसर, इन्फ्रारेड वॉल सेंसर, क्योंकि वॉल को भी डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो दिस थिंग्स विल कम अंडर द piece with respect to artificial intelligence as an vacuum cleaner. Now you dear students, you tell me that whether these two agents are and their PEAs clear to you or not. जल्दी बताओ। Yes sir, clear sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप इस जो पिकिंग रोबोट, यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हो। दिस पिकिंग रोबोट मतलब क्या कर रहा है, ये कुछ पिक कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट को पिक करके कहाँ पे रखना है ये सारी चीज कर रहा है, ठीक है। सपोज कुछ डब्बा उठा के वो एक जाके डस्टबिन में फेंक रहा है, तो ये सारे चीज करने के लिए भी हम एक AI एजेंट पिकिंग रोबोट यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको परफॉर्मेंस मेजर में आप देख रहे हो क्या विथ रेस्पेक्ट टू पिकिंग रोबोट, एनवायरमेंट में भी देख रहे हैं, ये सारे चीज एक बार फिर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करना है। द क्वेश्चन इज यू नीड टू राइट द PEAs with respect to picking robot in the comment section. ठीक है? Is the question sir. clear to all of you or Yes sir. so Yes clear? sir. Okay, so I'm considering these things now. For today, I think this is sufficient because ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। इतना पढ़ लिया, ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लेना जब रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो एक बार कर लेना। बस इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू टर्मिनेट द लेक्चर विद दिस, ओके, Thank you sir.